Hello my dear students, good morning to all. Today we will study how to using a ruler. Means the ruler means scale to measure length. If object is small, then we have to use ruler. For example, to measure the length of chalk, to measure the length of what? Pen, pencil, anything. We can use the scale. That is called another name for scale is ruler. Using a ruler or scale to measure length. 3 steps are there. You have to keep in mind. At first, you in your geometry box you have a scale, small scale. That is called a small scale. That is 15 centimeter scale. Place a 15 and this such type of scale is 0 to or 1 to 15 numbers were written. So that's why this is 15 centimeter ruler on a table. You have to place like this scale on a table at first. Second step, place the object. Object means कोई भी चीज. For example, pen, pencil, anything. Place the object. Here I have taken here pencil, crayon. Crayon means color pencil. Place the object whose length has to be measured above the scale. Above the scale, you have to place that object. Okay, such that. But how to place? Such that its one end coincide with the 0 mark. One end of that object. Any object we have two points. This is first point and this one is second point. First point, last point, or otherwise this side is first side, first point, and this one is starting point, and this one is end point, like that. Place the objects whose length has to be measured above the scale such that its one end coincide. Coincide मतलब इसका जो भी चीज है उसका एक पॉइंट 0 पर आना चाहिए with the 0 mark of the ruler. 0 मार्क पर आना चाहिए. सच है. वही उस ढंग से उस ऑब्जेक्ट को रखना है स्केल पर. फिर थर्ड स्टेप, मेक ए नोट ऑफ द नंबर ऑन द रूलर वेयर द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड. अब दूसरा एंड कहां पर एंड हो रहा है उसका, जैसे यहाँ पर 0 पे है ये वाला, ये पेंसिल का पॉइंट पहला, ठीक है, और लास्ट वाला कहां पे है 2 पे एंड हो रहा है, यहाँ पे 2 पे है, यानी 2 नंबर पर है. इसलिए फिर उसका लेंथ ऑफ क्रेयॉन विल बी योर 2 सेंटीमीटर. फॉर एग्जाम्पल, वन एंड ऑफ द क्रेयॉन इज एट 0. पहला एंड कहां पे है इसका 0 पे है. द अदर एंड ऑफ द क्रेयॉन इज एट 2 centimeter, isn't it? The other end of the crayon is 2 centimeter. Hence, the length of the crayon is 2 centimeter. Understood? Hence, the length of the crayon is 2 centimeter. This is 15 centimeter ruler or scale. So, understood this thing? So, 3 points. Simple only. For एक point 0 पर लगाना है, दूसरा कहाँ एंड होता है वो देखना है. जैसा इस क्रेयॉन का 0 पे है और दूसरा वाला पॉइंट का एंड हो रहा है 2 पे. इसलिए लेंथ ऑफ क्रेयॉन इज 2 centimeter. Understood? So, note down this one. Now look at, let us practice 2.2. Write the measure of the following object. Here brush is given and we have to write how much centimeter that brush is. So the one end of the brush is at 0 and the other end of the brush is at which number showing? 5. So the length of the brush is how much centimeter? 5 centimeter. Understood? So in this way you have to complete that. This one. Second, B key and that C given what? Pen. And question number second, what it is given? Use a scale and measure the length in bracket given in centimeter of the line segment given below. This is AB is line segment, XY name given, different name we can give, but capital letter should be there. AB line segment, AB we can read, line segment XY, line segment PQ, line segment RS and line segment OP. So how to measure? So one end of the scale of this ruler, take this 0 you have to place like this. We have to measure the length of line segment AB. Okay. So place this 0 at point A. And where is that B? At point B. Point B is representing number 4. So the length of the line segment AB equal to what? 4. Here you have to write 4 centimeter. Understood? So in this way you have to complete this one. Now we will study conversion of length. Conversion means we are here in bracket given M oblique CM. M means meter, already I told. Short form only we have to use. M means meter, CM means what? Centimeter. Meter, centimeter, kilometer, like that. Only meter to conversion. Meter to centimeter or centimeter to meter also sometimes we have to convert. Now meter to, at first we will study conversion of meter to centimeter. So 1 meter equal to, you have to keep this formula in mind. 1 meter equal to how much centimeter? 100 centimeter. By this formula, 1 meter equal to 100 centimeter. Rule. Multiply the number of meter to convert meter to centimeter. What we have to do? Multiply the number of meter by 100 and put cm. Cm means centimeter to the right side. To convert meter to centimeter, you have to do multiplication by 100. And at last, don't forget to put this
unit, because many students were not writing units. If you are not writing units, your mark will cancel. Multiply the number of meter by 100 and put cm. Cm means centimeter to the right side. Example given. Convert 6 meter into centimeter. Here 2 units were given. यानी 6 मीटर को हमें किसमें आंसर लाना है, सेंटीमीटर में. सो व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर? वी नो दैट 1 meter equal to how much centimeter? 100 centimeter. Therefore 6 meter equal to what? We have to do that multiplication. 6 into 100. 6 into 100 how much? 6 1s are 6, 2 zeros means 600 सेंटीमीटर. समझ में आया? इतना भी कुछ करना नहीं है तो फिर इसमें सीधा 100 में 2 जीरो है तो 6 के आगे 2 जीरो आप पुट भी कर सकते हैं, आंसर मिल जाएगा. 6 मीटर इक्वल टू 6 लिख के उसके आगे 2 जीरो डालो, सेंटीमीटर में आएगा. ठीक है? या फिर ये फॉर्मूला ध्यान में रखो. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. Therefore 6 meter equal to 6 into 100, 600 meter. So note down this example. Now second rule, look that to convert meter and centimeter. If suppose it is given meter and centimeter and we want answer in centimeter, then multiply the number of meter by 100. Multiply the multiply the meter by 100 and add यानी क्या, multiply भी करना है यहाँ पर और add यानी क्या, plus, and add it to the number of centimeter. For example here convert example 6 meter 30 centimeter into centimeter. ये मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है और आंसर निकालना है हमें सेंटीमीटर में. ओके, 6 मीटर 30 सेंटीमीटर. आंसर किस में निकालना है हमें? सेंटीमीटर में. तो इसको कुछ नहीं करना है 30 सेंटीमीटर को. अभी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले 6 मीटर को, हमें मीटर नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में आंसर लाना है. इसलिए 6 मीटर को आप चेंज करो, उसको सेंटीमीटर में लाना है. तो क्या है फॉर्मूला? वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. ओके, देन 6 मीटर इक्वल टू 6 इंटू 100. 6 इंटू 100 कितना होगा फिर? 6 1 जार 6 एंड 2 0, 600 सेंटीमीटर. 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर. तो अब यहाँ पर हम 6 मीटर की जगह हम 600 सेंटीमीटर लिख सकते. और ये अभी ये सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, उसमें ऐड करना एंड मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड यानी क्या, प्लस ये वाला 30 सेंटीमीटर. ठीक है? अब उसमें 600 में 30 ऐड कर दो. अभी 600 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर ऐड करो. क्या आएगा आंसर? 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3 3 एंड दिस 6 मीन्स 630 सेंटीमीटर. 630 सेंटीमीटर. समझ में आया? तो और एक बात ध्यान में रखना है, सेंटीमीटर वाला नंबर कभी भी 2 डिजिट का चाहिए हमें. कितने डिजिट का? 2 डिजिट का ही होना चाहिए. शॉर्टकट मेथड भी है इसकी. शॉर्टकट मेथड यानी कैसा, ये तो अभी पूरा फॉर्मूला लगा के उसमें सॉल्व किया हमने. पुट इट हियर फॉर्मूला एंड फाइंड इट. अगर दूसरे मेथड से करना है, मेथड सेकंड, व्हाट इट इज गिवन 6 मीटर 30 सेंटीमीटर. सबसे पहले देखना है सेंटीमीटर वाला 2 डिजिट का नंबर है क्या? 1 2 डिजिट का है. अब यहां पर क्या करना है, सिर्फ मीटर को हटाना है. यहाँ सिर्फ 6 यम नहीं लिखना है. 30 सेंटीमीटर हमें आंसर निकालना है सेंटीमीटर में. तो 630 सेंटीमीटर. जस्ट यू हैव टू रिमूव विच लेटर? यम यानी मीटर. और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर में. लेकिन जब सेंटीमीटर का 2 डिजिट में रहा, तो कभी कभी 1 डिजिट में रहा, जैसा अभी सपोज यहाँ 3 होता था, उस समय आपको 0 आगे लगाना है. यानी इधर लेफ्ट में, राइट में नहीं, लेफ्ट में 0 लगाना पड़ता है. तो ठीक है, कोई भी डिजिट नंबर रहा सिंगल डिजिट, तो उसके आगे 0 लगाने. ये डायरेक्ट हुआ और ये मेथड के साथ हुआ, आंसर हो जाता उसमें. सो अंडरस्टूड? सो नोट डाउन दिस वन. नाउ वी विल स्टडी कन्वर्शन ऑफ सेंटीमीटर टू व्हाट? मीटर. ओके, नाउ रूल टू कन्वर्ट सेंटीमीटर, इफ इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, into meter and centimeter, we separate the ones and tens digit from the given number of centimeter. The number thus followed by ones and tens digit gives us the centimeter and the remaining number gives us what? Meter. If number is more than 100, any number, अगर 100 से कोई भी नंबर बड़ा रहा तो उसकी मेथड अभी कैसा क्या करना है यहाँ देखो. टू कन्वर्ट, अभी सेंटीमीटर भी दिया है, इनटू मीटर और सेंटीमीटर, और हमें लाना है आंसर मीटर एंड सेंटीमीटर में. उस समय क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर है, 1s 10s 100. तो 1s और 10s को सेपरेट करना होगा आपको. वही सेपरेट द 1s एंड 10s डिजिट फ्रॉम द गिवन नंबर. इसको सेपरेट करना है यानी अलग करना है. ठीक है,
आप सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 और 10 को हटाना है, हटाना मतलब अलग करना है। द नंबर 10 फॉर बाय 1s and 10s डिजिट गिव्स अस द सेंटीमीटर। 1s और 10s में जो भी नंबर रहेगा वो सेंटीमीटर में रहेगा, एंड द रिमेनिंग नंबर गिव्स अस व्हाट, मीटर। यानी यहाँ पर 1s 10s इसको, ठीक है। अब देखो मैं 1s और 10s को अंडरलाइन कर लिया। अब अंडरलाइन किया वाला नंबर सेंटीमीटर में रहेगा और बिना अंडरलाइन किया वाला नंबर कौन सा, यहाँ 4 रहेगा, फिर मीटर में 4 मीटर 37 सेंटीमीटर। और अदरवाइज अनदर मेथड इज आल्सो देयर, 437 सेंटीमीटर इक्वल टू, वी कैन राइट 437 इक्वल टू व्हाट, 437 को कैसे लिख सकते हैं हम, 400 सेंटीमीटर प्लस 37 एक्सपेंडेड फॉर्म में। 400 1s 10s 100, 4 का प्लेस है 400 प्लस 37, या 30 प्लस 7 नहीं लिखना है, 37 की, ठीक है। अब 400 सेंटीमीटर यानी क्या, जैसा अभी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, 300 सेंटीमीटर 3 मीटर, उसी ढंग से 400 सेंटीमीटर यानी क्या बनता है, 4 मीटर। यानी यहाँ पर 400 सेंटीमीटर की जगह मैं लिख सकता 4 मीटर, और ये प्लस साइन निकालना है उसमें 37 मीटर, 4 मीटर 37 मीटर। या फिर सेकंड मेथड है, ये नंबर दिया है एग्जांपल में 437, ठीक है। अब 1s और 10s को, अब 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, 100 मीटर, और सेंटीमीटर में रिलेशन क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, इसलिए 2 नंबर छोड़ के लाइन ड्रॉ करो। 1s और 10s को सेपरेट करना है, तो लाइन के पहले वाला नंबर मीटर, लाइन के बाद वाले जो भी नंबर 2 ही रहते नंबर, वो वाला रहेगा सेंटीमीटर में, मीन्स 4 मीटर 37 सेंटीमीटर। सेम आंसर गेटिंग हियर। इस ढंग से भी कर सकते हैं या फिर इससे भी, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं इसको 100 से। तो ये सिंपल है, 2 लाइन कभी भी राइट से 2 नंबर छोड़कर लाइन ड्रॉ करो। अगर 4 डिजिट का भी अगर नंबर रहा तो भी 2 ही नंबर छोड़ना उधर से, और लाइन के लेफ्ट वाला नंबर रहेगा मीटर में, और राइट लाइन के उधर वाला यानी राइट साइड में जो भी नंबर रहेगा वो सेंटीमीटर पे रहेगा, यानी 4 मीटर 37 सेंटीमीटर। सो अंडरस्टूड, सो नोट डाउन दिस रूल एंड दैट एग्जाम्पल ऑल्सो। नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट लुक दैट कन्वर्ट 4 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 4 मीटर आंसर निकालना है हमें सेंटीमीटर में, तो वी नो दैट मेथड वाइज से भी आता है, डायरेक्ट भी कर सकती है। यहाँ कौन सा नंबर है, 4, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100, और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो पुट करने का राइट साइड में सेंटीमीटर। ये शॉर्टकट में हुआ, या फिर वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 4 मीटर इक्वल टू 4 इंटू 100, 400 सेंटीमीटर, या फिर डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, कन्वर्ट 1 मीटर 82 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां दिया है मीटर में भी दिया है, सेंटीमीटर 2 यूनिट दिया है, आंसर निकालना है सेंटीमीटर में, तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर आ जाता, फिर उसमें 1 मीटर है 100 में ये 82 ऐड कर दो, फिर 182 सेंटीमीटर आएगा। या फिर सेंटीमीटर वाला 2 डिजिट का नंबर है यहाँ पर, तो यम लेटर हटा सकते हैं आप, डायरेक्ट लिखने का नंबर सिर्फ 182 सेंटीमीटर, 182 सेंटीमीटर। ये यम लेटर उसमें रिमूव कर देने का उसमें, ठीक है। या फिर मेथड वाइज से भी आता है, जो आपको इजी लगता है वो मेथड से कर सकते हैं। सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड। एग्जांपल थर्ड लुक दैट कन्वर्ट 800 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर। ये नंबर 800 100 से बड़ा है, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लेंगे। हम इसमें सेंटीमीटर भी दिया है और मीटर और सेंटीमीटर में हमें आंसर उसका फाइंड करना है। तो देखो यहाँ 1s 10s 2 नंबर छोड़ दो राइट से, 1s और 10s को, और वहां लाइन ड्रॉ करो। तो लाइन के पहले वाला मीटर रहेगा आपका नंबर, और लाइन के बाद वाला जो भी नंबर रहेंगे सेंटीमीटर, यानी 8 मीटर 00 सेंटीमीटर, 0 कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 8 मीटर, ठीक है। अगर नंबर रहा तो नंबर लिख सकते हो उधर। तो ये हो नाउ होमवर्क, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 250 and 251. Let us practice 2.2 first and second, and page number 253 also let us practice 2.3 first, second and third. At first you open your textbook page number 250. Let us practice 2.2. डायग्राम जैसा दिया है वैसा ब्रश बनाने, जितना सेंटीमीटर के उतने यानी 5 तक, ठीक है। फिर यहाँ उसके नीचे आंसर लिखना है आपको। पहला पॉइंट या 0 पे, और दूसरा पॉइंट है कौन से नंबर पर आ रहा है, स्केल से मेजर किए तो 5 तक, तो उसका लेंथ ऑफ ब्रश हुआ 5 सेंटीमीटर। और सेकंड में यूज स्केल एंड मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द लाइन सेगमेंट। ए बी लाइन सेगमेंट दिया है, उसका लेंथ मेजर करना है और यहाँ आंसर लिखना है। और पेज नंबर, उसके बाद पेज नंबर क्या दिया है,
253. Now open that 253. Let us practice 2.3. First, second and third. एक एक एग्जाम्पल मैंने करके दिया ऑलरेडी. 4 मीटर इक्वल टू, सिर्फ नंबर के आगे 2 जीरो लगाना है. 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर. 6 मीटर इक्वल टू 600, लाइक दैट. और यहाँ पर पहले देखना, उधर सेंटीमीटर वाले 2 डिजिट के नंबर रहे तो ही लेटर रिमूव करना. ठीक है, या 2 सभी में है. हाँ, ई में, ई और एफ में तो यहाँ 12 मीटर 3 सेंटीमीटर है. यहाँ पर क्या दिया है, 12 मीटर 3 सेंटीमीटर. तो इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते. इसमें ये सेंटीमीटर वाला 2 डिजिट का नंबर चाहिए हमें. तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब आप क्या ले सकते, 3, यानी 3 के पहले क्या डाल देंगे वहां, 0. अब आप ये यम हटा सकते. 1203 सेंटीमीटर, यानी 1203 सेंटीमीटर. इन दिस वे वी हैव टू डू. ये बात ध्यान में रखना. उसमें उधर 0 नहीं लगाना है. 0 के पहले, यानी नंबर के पहले 0 पुट करना. राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में. एंड थर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर. 2 नंबर राइट से 2 नंबर छोड़कर लाइन ड्रा करो उसमें. जैसा ये एग्जांपल पहला एक करके दिया 800 का, उसी ढंग से आपको बच्चे वाले एग्जांपल करना है. सो ट्राई टू कंप्लीट दिस. लेट अस प्रैक्टिस 2.2 and 2.3. ओके.